Hello viewers and welcome to DD News, Doordarshan's very important series on important topics, and today's first topic is on ease of living. And what an important occasion to celebrate this entire issue of ease of living and to understand it in better perspective. We all know that it all started when our Honorable Prime Minister gave us the idea of ease of living, and the importance was underlined. And it really meant to affect positively the life of every citizen in the country. And at this point in time, when the country is celebrating Azadi Ka Amrut Mahotsav, it's very, very pertinent that we take time off to understand how it's really evolving in our country as we move ahead. When I was preparing for this program and when I was asked to moderate, I asked a villager who comes to town every day to earn a living as to how life seems to be changing for him in terms of ease of living. So he came up with a few pointers. The first point that he said, that मेरा अभी पक्का रास्ता बन गए हैं मेरा village का साथ, जिसके लिए मैं आज जो commuting that he does with the town, at the time has come down drastically. He's got a pakka road instead of a kacha road, and he is such a happy man today because it's so much more easier for him to commute. The second point which he said was very, very important, and he talked about that he gets the gas cylinder so very easily. Earlier, there used to be so much of difficulty in fact getting a gas cylinder, but the promise of the gas cylinder, the ease with which he gets it, has really improved not only his but his entire family's life standards. The third point he said to me was the availability of electricity in the village. So it's not only again for his own home, but for his entire village. And that's really not only improved his way of living, but also brought in a lot of more economic activities into that village. The fourth point, as a farmer who is connected to the village, he lives in the village, he's a rural, one of his important stake is in agriculture. He said, I get fertilizer so very easily. Earlier, it used to be so difficult for me to get fertilizer. He said that even there were so much of corruption, black market in fertilizer, etc. And now it's so much easier for me to get it. So that's a very, very important ease in terms of living for him. And the last point that he told me was also something that we all know, we are all hearing about it, it's a great success of it, is that I have a toilet at home. Not only me, but many others in the village who didn't have, today have that toilet at home, which has enhanced my safety of my family so very strongly. So these were some points that came from a common man who commutes from the village to town every day. So what has enabled all of this? We have seen the country working on a mission mode in many schemes that we have seen in different areas over the last few years. And I'll touch upon a few of them before I come to my very, very eminent panel. The first, of course, the focus on economically weaker sections of the society, which is so very important when we talk about ease of living. And when we see very important schemes like the Pradhan Mantri Awas Yojana and many other schemes which have actually resulted in ease of living. The second broad bucket of areas, if I can say, is the focus that the government has given on infrastructure building. And if you see the National Infrastructure Pipeline and many other, again, missions that we have seen in infrastructure, which has really helped ease of living both in rural India as well as in urban India. We will talk about that in a few minutes' time. The third is, of course, we have heard how digital infrastructure is changing, which is and the entire digital mission has been so very critical when we talk about areas like banking and so on, daily lives of people, how much it has influenced. So that's another bucket. I'm sure this eminent panel will touch upon it. The fourth is a very, very critical bucket for which we need health, education, and skills for the people of the country. And I see through that, when I see this particular area, we find some very, very effective missions of the government, schemes of the government, which has helped
reach education, reach health, and develop skills in our people, be it Ayushman Bharat or be it Skill India or the new education policy. Very, very important points, and I'm sure, again, we will hear much about it in the next hour's time. The fifth area, again, is a very important area, is women. And I think that's something which we have seen a very strong focus in the country over the last few years. Ujjwala Yojana and nutrition. These are so important initiatives in really giving ease of living to half the population of the country. And my last area is the area of ease of doing business. Why I say that is because through it we develop entrepreneurship, through it we develop a lot of livelihood, which is all very important. I thought of mentioning some of these areas which have been really path-breaking in making ease of living actually happen in our country. With that, I'll really like to introduce the very, very eminent panel that I have here with me, and my chief panelist, if I can call him, is Mr. Amitabh Kant, the CEO of Niti Aayog. And as you know, Mr. Kant has actually led many of the missions that which relates to ease of living in the last many years. He has held many positions in the government, and today he is ideally suited in telling us how the government has been working in this entire ecosystem of ease of living. So welcome to you, Mr. Kant, and thank you very much for being with us. May I introduce the other panelists that I have here with me, Dr. Charan Singh, the Chief Executive of Agrao Foundation, which is the Foundation of Economic Growth and Welfare. Again, someone who has been very well and strongly associated with areas of international trade, banking, economic reforms, and so he will give us a perspective of how all of this has actually affected ease of living. The next panelist is our very eminent Dr. Nupur Tiwari. Dr. Tiwari has phenomenal interests in tribal policy and governance, tribal development, administration, rural development, Panchayati Raj, gender issues, and public policy. She is the Associate Professor and Head of the Center of Excellence for Tribal Affairs at the Indian Institute of Public Administration, IIPA. Welcome to you, Dr. Tiwari. And of course, I have my old friend and a very good person in Professor Sachin Chaturvedi, the Director General and at the Research and Information System for Developing Countries. And he brings in a lot of experience when he talks on developmental economics, and of course involving developmental finance, SDGs, and South-South cooperation, apart from trade, investment, and innovation linkages. And a lovely audience here in front of us to really participate actively at this session that we have. With that, let me first come, as I mentioned, to Mr. Amitabh Kant, the CEO of Niti Aayog, to give us a perspective about how the government is working on making it easier for us to live. Over to you. थैंक यू चंद्रजीत। मेरे विचार से ईज़ ऑफ लिविंग तब होती है जबकि साधारण व्यक्ति, जो कॉमन सिटीज़न होता है देश का, उसके पास घर हो, उसके पास बैंक अकाउंट हो, उसके पास बिजली हो, सड़क हो और गैस का कनेक्शन हो, और अब आगे चल के पानी मिलता रहे 24 घंटे। तो पिछले 7 सालों में अगर आप देखिए तो करीब 45 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं देश में। मैं इसके पहले केरला में काम करता था और मुझे एक अवसर मिला वहाँ के ट्रेडिशनल फिशरमैन, मछुआरों के साथ काम करने में। उनको नई टेक्नोलॉजी देनी थी, तो हम लोगों ने उनको फाइबर ग्लास क्राफ्ट दिया, नेट दिया, आउटबोर्ड मोटर दिया। पर जब उनका बैंक अकाउंट खोलने जाते थे तो एक एक बैंक मैनेजर के पीछे भागना पड़ता था, 9 महीने लगते थे बैंक अकाउंट खोलने। अब आप 1 मिनट में अपना बायोमेट्रिक को उपयोग करके आप 1 मिनट में बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। तो जब मैं 10 साल पहले वहाँ काम करता था और अब से देखें तो 9 महीने जो चीज़ लगती थी अब वो 1 मिनट में खोलते हैं। तो मेरे विचार से जो सबसे बड़ी चीज़ हुई वो ये हुआ कि 45 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए, उसके साथ साथ सबके पास एक आधार अकाउंट आया, और देश में देखिए तो सबके पास मोबाइल है।
तो जिसको हम जैम ट्रिनिटी कहते हैं। और उसकी वजह से जो दूसरी बहुत बड़ी चीज़ हुई कि लोगों को अपना ट्रांजैक्शन करना हो, बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन करना हो, कोई चेक लिखने की ज़रूरत नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड करने की ज़रूरत नहीं, एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस किया गया जिसमें कि देश के 150 बैंक इंटरकनेक्टेड हैं और आप अपने मोबाइल को और अपने आधार को उपयोग करके बैंक ट्रांसफ़र, मैं आपको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, आप किसी मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं। और इससे बड़ा ही सिंपल तरीके से देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ा और इससे हमारे देश में हर महीने करीब 35 करोड़ ट्रांजैक्शंस होते हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मोबाइल को उपयोग करके लोग न बैंक न जाने की ज़रूरत है, न चेक काटने की ज़रूरत है, न अपने क्रेडिट कार्ड उपयोग करने की ज़रूरत है, अपने मोबाइल से ट्रांजैक्शन करने लग गए। तीसरी चीज़ जो बहुत बड़ी चीज़ मेरे विचार से हुई कि देश में ये डिजिटाइजेशन की वजह से प्लेटफॉर्म्स बने, जैसे कि यूपीआई बना, जैसे कि आधार बना। उसी तरह गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो भी चीज़ें खरीदेंगे जेम प्लेटफॉर्म पर खरीदेंगे। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बना। पहले बहुत गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट में करप्शन हुआ करता था, अब सारी चीज़ें जेम के द्वारा की जाती हैं। इसी तरह आप देखिए कि जो सबसे बड़ी चीज़ हुई मेरे विचार से, हमारे देश में बहुत सारे लोग दारिद्रता रेखा के नीचे चले जाते हैं क्योंकि उनके पास हेल्थ कवरेज नहीं होता। तो इस गवर्नमेंट ने क्या किया, करीब 50 करोड़ दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की और 500 मिलियन 50 करोड़ लोगों को एक हेल्थ इंश्योरेंस दिया। और 50 करोड़ का मतलब है जो पॉपुलेशन अमेरिका, यूरोप और मेक्सिको की जो पॉपुलेशन है उतने ज़्यादा लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ किया गया। और ये पूरा डिजिटल है। मैं बिहार में रहता हूँ, मैं बिहार से केरला जाता हूँ, केरला से मैं तमिलनाडु जाता हूँ, मेरे साथ मेरा हेल्थ इंश्योरेंस जाएगा और उसका पेमेंट सरकार कर रही है। ये बहुत बड़ा बदलाव आया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब डिजिटल हेल्थ स्कीम लॉन्च की जिससे कि हर आदमी के पास जैसे आधार होता है उसके पास हेल्थ आइडेंटिटी होगी। तो आपको डॉक्टर के पास जाना हो, किसी नर्स के पास जाना हो, आप अपनी हेल्थ आइडेंटिटी आगे से कैरी करिएगा। और इसलिए बार बार आपको अपना रिकॉर्ड नहीं, ये पर्ची नहीं लिखनी पड़ेगी, वो डिजिटाइजेशन से कैरी करता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। उसके अलावा आप देखते हैं तो करीब 3 करोड़ घर बने, यहाँ 3 करोड़ घर बने। और ये मेरे विचार से हर व्यक्ति के पास, जिसके पास घर नहीं था, एक घर आया। और बिजली कनेक्शन, क्योंकि गांव गांव में बिजली पहुंचाई गई। तो लोग पहले परेशान रहते थे कि बिजली कट हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, बिजली आती नहीं, बिजली थी नहीं गांव में। ये हर गांव में बिजली पहुंचाई गई। तो एक इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ। तो ये हर घर में बिजली पहुंची। और इसके साथ साथ देश में करीब 100% घरों में गैस कनेक्शन प्रोवाइड किया गया। जहाँ जहाँ गैस कनेक्शन नहीं था आपको गैस मिल जाएगा, क्योंकि पहले औरतें गांव में लकड़ी काट के खाना पकाती थी, उससे धुआं निकलता था जिससे कि हेल्थ खराब होती थी, आँख खराब होती थी, पूरी हेल्थ फैमिली की बर्बाद होती थी। हर जगह गैस कनेक्शन दिया गया। और मेरे विचार से जो सबसे बड़ी क्रांति आने वाली है वो ये है कि देश में करीब 17 करोड़ घरों में पानी, ये जो माननीय प्रधानमंत्री की जो स्कीम है जल वितरण की, पाइप्ड पानी पहुंचाया जाएगा हर घर में। तो ये पानी हर जगह जगह घरों में, और ये बहुत बड़ा एक मूवमेंट खड़ा किया गया है। और मेरे विचार से जो ये सब चीज़ हो पाई है इस देश में, क्योंकि पहले क्या होता था, हर कार्यक्रम ईज़ ऑफ लिविंग हो, कुछ भी हो, एक सरकार के प्रोग्राम की तरह रह जाती थी और वो फिर सरकारी अफसर लोग चलाते रहते थे और डिलीवरी ग्रास रूट लेवल पे बहुत पुअर रहती थी। ये सारा क्यों हुआ? क्योंकि एक जन आंदोलन बना और जन आंदोलन के साथ एक लिमिटेड टाइम के अंदर उसको डिलीवर किया गया और डिलीवरी के साथ साथ डिजिटाइज किया गया हर चीज़ को, और डिजिटल ट्रैकिंग हुई इसकी ऑनलाइन। मैं एक और कार्यक्रम
सब नीति आयोग में हम लोग चलाते हैं, जिसको हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कहते हैं, जिसको माननीय प्रधानमंत्री ने कहा इसको ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको बैकवर्ड मत कहिए, आप लोग एस्पिरेशनल कहिए, तो हम एस्पिरेशनल कहते हैं। ये देश के आकांक्षी जिले हैं 112 जिले, और इन 112 जिलों में हमने रियल टाइम मॉनिटरिंग की, हर डिस्ट्रिक्ट को रैंक किया, और हर डिस्ट्रिक्ट में अब आप देखते हैं तो लर्निंग आउटकम का बहुत बड़ा बदलाव आया है, हेल्थ आउटकम का बदलाव आया है, स्किल्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है, कृषि में बदलाव आया है, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ इम्प्रूव हुआ है इन सारे जिलों में 112। और ये देश के सबसे पिछड़े हुए और सबसे बहुत ही मुश्किल जिले थे, कई बॉर्डर एरियाज पे थे और बहुत मुश्किल जिले थे, पर क्योंकि लग के सारे डिपार्टमेंट्स ने इस पर मेहनत की, सबने मिल के किया, डिजिटाइज ट्रैकिंग की, आउटकम को ट्रैक किया और डिजिटली ट्रैक किया रियल टाइम बेसिस पर, इसलिए इन सारे 112 जिलों में बहुत बड़ा बदलाव आया है और बहुत बड़ी क्रांति आई है। तो मेरे विचार से ईज ऑफ डूइंग हो या ईज ऑफ लिविंग हो, उसका बेसिक एक लक्ष्य होता है, जो कि वो है कि साधारण व्यक्ति, देश के कॉमन सिटीजन की ज़िंदगी में कैसे बदलाव आया है, और उसको हर जगह उसको अपने आप घर पे उसको घर मिला, बिजली मिली, पानी मिला, और उसको दौड़ना नहीं पड़ा हर जगह। तो ये जो एक बहुत ही एक रेवोल्यूशन जैसे चेंज हम देख रहे हैं, इसमें मेरा एक आपसे जानने का इच्छा है कि सरकार का माइंडसेट का भी काफ़ी चेंज हुए हैं, सरकार का लोगों का, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, एक तो सेंट्रल लेवल में या लोकल लेवल में माइंडसेट का तो बहुत परिवर्तन बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। अगर माइंडसेट नहीं चेंज हुआ होता तो ये डिलीवरी नहीं हुआ होता। तो ये माइंडसेट आपने कैसे आप लोग ने कैसे काम किया गवर्नमेंट से? और दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि एक तो था साधारण व्यक्ति को वो अप्रोच ही नहीं करते थे गवर्नमेंट को, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है कुछ मेरे को बोल के, क्योंकि होगा नहीं। आज वो कॉन्फिडेंस आपको लगता है साधारण आदमी का पास आया है, और आपने कैसे उनका ये कॉन्फिडेंस जीता है, कैसे उनको आपने उनका कॉन्फिडेंस विन कर पाए कि आप सरकार का पास आओ, आपका ईज ऑफ लिविंग मिलेगा। आपने बताया करप्शन का बारे में बताया, वो कैसे कम किया है। सो माइंडसेट ऑफ बोथ द एडमिनिस्ट्रेटर एंड माइंडसेट ऑफ बोथ द ऑर्डिनरी पीपल, ये दोनों को आप चेंज कैसे किए? तो चंद्रजीत जी, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर देश में एक राष्ट्रीय इच्छा शक्ति हो, एक पॉलिटिकल विल हो, तो बहुत बदलाव आ सकता है। मेरी करीब 42 वर्ष की सरकारी नौकरी रही है, और मैंने ये देखा कि पहले हम लोग जो सरकारी अफसर लोग थे, वो लोग फिजिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट देखते थे कि भाई पैसा इतना मिला, पैसा खर्च हो गया। आप यही देखते थे कि पैसा खर्च हो गया, कोई ये नहीं देखता था कि उसका आउटकम क्या है, उसका क्या आउटपुट है, और क्या उससे बदलाव आ सकता है। ये जो सरकार आई, इसने पहली बार ये फोकस किया कि भाई आप आउटकम, फिजिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट नहीं, आप आउटकम पर फोकस कीजिए। क्या होता था कि बच्चे स्कूल में जाते थे, वो 5वीं से 6ठी, 6ठी से 7वीं, 7वीं से 8वीं क्लास में जाते थे, पर 5वीं क्लास का ना अपनी मातृभाषा बोल पाते थे, ना अंग्रेजी बोल पाते थे, ना गणित कर पाते थे। तो ये आउटकम इंप्रूव करना ज़्यादा आवश्यक है। तो जब ये कार्यक्रम शुरुआत किए गए, जब हाउसिंग हो या इलेक्ट्रिफिकेशन हो, आउटकम पर फोकस आया। दूसरी चीज़ क्या हुई कि टेक्नोलॉजी का बहुत भारी उपयोग हुआ, और हर चीज़ में डिजिटाइजेशन आया और ट्रैकिंग आई, और डिजिटाइजेशन का उपयोग करने से बहुत बदलाव आया, और टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ। हर सड़क देखिए आप, उसमें कितना रबर का वेस्ट उपयोग हुआ है, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है, और जगह जगह हम लोगों ने आउटकम बेस्ड ट्रैकिंग में डिजिटाइजेशन का उपयोग किया है। इसी तरह जब यूपीआई शुरुआत हुई, जब डिजिटल पेमेंट की शुरुआत हुई, तो इन बैंक्स को 150 बैंक्स को एक साथ लाना, उन सबका इंटरकनेक्ट करना, और फिर एक मूवमेंट खड़ा करना, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उससे कहा कि 100 दिन के अंदर 100 डिजी मेला कीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर डिजी मेला कीजिए। पर अब देखते हैं हम लोग, तो
उस समय लगता था कि 100 दिन में 100 डिजी मेल आप पूरे देश में करना बहुत मुश्किल है, पर अब देखते हैं कि उसी वजह से क्रांति आई, उसी वजह से ये बदलाव आया कि सब साधारण व्यक्ति भी अब मोबाइल पर अपना डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। ये जो कोविड आया, इतनी बड़ी घटना हुई कोविड की, उस समय भी गांव-गांव, मैं तो बनारस में गया, सेवापुरी में गया, कई जगह गया और केरला में भी गया, लोगों ने अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप पर क्लासेस अटेंड की। तो इसलिए डिजिटाइजेशन बहुत ज़ोरों से फैला और अब जब भारत नेट पूरे देश में फैल जाएगा अगले 1000 दिनों में, तो आप देखिएगा इसका बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और मेरे विचार से अब मुझे लगता है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि सड़कें तो पहुंच गई हैं, घर भी पहुंच गए, अब पानी भी पहुंच जाएगा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा ज़रूरी है ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि अगर हिंदुस्तान को ईज़ ऑफ लिविंग को उपयोग करके डिजिटल, हमें टेक्नोलॉजी लीप फ्रॉगिंग करनी है, देश को बाकी देशों से आगे जाना है, तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें आगे ले जाएगा। और इससे साधारण व्यक्ति की तो ज़िंदगी बदली है, बहुत बदली है, पर साधारण व्यक्ति की इनकम को बढ़ाना है, उसमें कॉन्फिडेंस लाना है, उसको टेक्नोलॉजी सेवी बनाना है, और वो सारा डिजिटाइजेशन से होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए, आपको और एक सवाल मैं करना चाहता हूं, क्योंकि ये हम अब सेंट्रल लेवल के आपने काफ़ी सारी योजना के बात किए हैं, माननीय प्रधानमंत्री का मिशंस का बारे में आपने बात किए हैं, लेकिन हमारे स्टेट्स, राज्य में राज्य का भूमिका भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का बात किए हैं, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स तो कोई ना कोई राज्य में है एक्चुअली। तो आपने क्या भूमिका देखते हैं हमारे राज्य सरकारों को, और आप राज्य सरकारों को कैसे आगे लेके चल रहे हैं इस आपका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिशन में? देखिए, अगर भारत देश तभी आगे जा पाएगा जब स्टेट्स आगे जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा कि अगर देश को की तरक्की करनी है तो स्टेट्स में एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा करना है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पर जोर दीजिए कि हम लोग को कोऑपरेट तो करना है पर कंपीट भी करना है। तो ये शुरुआत हुई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से, जहां हम लोग ने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पर हम लोगों ने स्टेट्स की रैंकिंग शुरू की। पहली बार देखा तो गुजरात नंबर 1 पर आया, पर कंपटीशन हो गया था। तो अगली बार देखा तो आंध्र प्रदेश आया। तीसरे वर्ष में तेलंगाना जो एक नया स्टेट था, उसने आंध्र प्रदेश को भी हराया और गुजरात को भी हराया। पर जो सबसे बड़ी चीज हुई कि ये हमारे जो मिनरल रिच स्टेट थे, छत्तीसगढ़, झारखंड, जो हमेशा पीछे रहते थे, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये चौथे और 5वीं रैंक पर आए कंपटीशन की वजह से। कंपटीशन की वजह से इन राज्यों ने लेबर चेंजेस किए, इन राज्यों ने दुनिया भर की चेंजेस किए, प्रोसीजर में, रूल्स में, एक्ट्स में, सब हटाए और ये चौथी और 5वीं रैंक पर आए। तो मेरे विचार से अगर ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इतनी तरक्की करेगा तो पूरा देश आगे जाएगा। और फिर जाकर हम लोगों ने नीति आयोग में हेल्थ में रैंकिंग की, पानी में रैंकिंग की, वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स किया, इसी तरह एजुकेशन आउटकम इंडेक्स किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रैंकिंग की, और अभी हाल ही में हम लोगों ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सारे डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग की। और यह सब रियल टाइम डेटा हम लोग उपयोग करते हैं, कोई डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर पाता। और हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में तो हम हर महीने रैंकिंग पब्लिक में डालते हैं। तो हमारा जो विचार रहा है कि कंपटीशन से देश इंप्रूव होगा, रैंकिंग से देश इंप्रूव होगा, कुछ नेमिंग और शेमिंग से भी देश इंप्रूव होगा। तो जब ये रैंकिंग, क्योंकि हम लोग पब्लिक के आगे डालते हैं, तो वहाँ के लोग फिर पूछते हैं अपने कलेक्टर से, अपने एमपी से, अपने मिनिस्टर से कि भाई हम आगे कैसे चले गए या हम पीछे कैसे रह गए, और अगर दूसरा डिस्ट्रिक्ट आगे चला गया तो हमें क्या करना है आगे जाने के लिए। तो ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लाना बहुत ज़रूरी था और वो इन रैंकिंग्स ने किया। पर सारे स्टेट्स के साथ मिलके न केवल हमने उनकी रैंकिंग की, हमने उनके साथ पार्टनरशिप भी की, और पार्टनरशिप के साथ हम आगे बढ़े हैं और पार्टनरशिप के साथ हम सारे स्टेट्स को आगे ले जाएंगे। ग्रेट स्टोरी, ग्रेट स्टोरी। मैं जानता हूं कि आपका समय भी अब हमारे साथ जो आपने दे रहे हैं, देयर इज़ अ फाइनाइट टाइम फ्रेम टू इट। सो आई लाइक टू ब्रिंग इन द ऑडियंस। मैं ऑडियंस से पूछूंगा किसी का पास, अमिताभ जी के लिए अगर कोई क्वेश्चन रहे तो।
हाँ जी, प्लीज़। हेलो सर, आई एम साहिल फ्रॉम ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। आपने अभी एक बात बोली कि प्रधानमंत्री जी और सरकार काफ़ी काम कर रही है तो 24 घंटे पानी की उपलब्धता के लिए। सो मैं इस पे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, हम नेशनल कैपिटल में रह रहे हैं, मैं इस बात से आपकी एग्री नहीं करूँगा कि 24 घंटे 24/7 वी आर गेटिंग वाटर सप्लाई। नेशनल कैपिटल के कुछ एरियाज़ में, मैं रोहिणी एरिया में रहता हूँ, वहाँ पे भी एक दिन छोड़ के सिर्फ वी गेट 2 आवर्स ऑफ वाटर सप्लाई। सो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कन्फ्लिक्ट है यहाँ पे? नहीं, देखिए, हर जगह लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, दिल्ली में भी लोकल गवर्नमेंट है, और मेरे विचार से कि ये सब पाइप्ड वाटर अगर मिलना है, और सब जगह, मैं तो देखिए नागपुर में एक बहुत ही स्लम एरिया में गया, वहाँ पर एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में एक स्कीम लगाई गई, और वहाँ उस स्लम की जो औरतें थीं उन सब ने कहा कि सबसे ज़रूरत है, सबसे बड़ी हमारी ज़रूरत है, क्योंकि पानी नहीं आता, हम अपने बर्तन नहीं धो पाते, हम खाना नहीं बना पाते, और इससे बीमारी फैलती है। तो अगर पानी आता है 24 घंटे तो हमें जो उसका पेमेंट है हम देने को तैयार हैं। तो इसलिए आप सब लोगों को और हम सब लोगों को अगर बिजली मिलती है, पानी मिलता है, तो जो उसका कॉस्ट है वो तो देना चाहिए। तो मेरे विचार से ये भी देश में समझना ज़रूरी है और बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अगर देश को तरक्की करनी है और आप सब लोगों को इसके पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, घर भी चाहिए, तो सरकार तो देती है, पर उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस तो मीट करना चाहिए। और मेरे विचार से आगे चल के सारे देश में अगर हमको इसको फैलाना है तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट तो सबको देना चाहिए, और इसी तरह हर गांव में, हर जगह उसको हम आगे चल के सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि हमें आज ही नहीं बल्कि अगले 50-60 वर्षों तक एक ग्रोथ करनी ज़रूरी है। देखिए, देश को अगर 9-10% पे ग्रो करना है और अगले 30-40 साल लगातार ग्रो करना है, तो हम सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा देश के डेवलपमेंट। Thank you very much, Mr. Kant, for your views, for your really giving us a full picture. आपने जो बोले हैं कि कैसे गवर्नमेंट ने काम कर रहे हैं इस विषय पे और कैसे आप सबको आगे लेके चल रहे हैं, ये बहुत ही हमारे ये आज का फर्स्ट सेशन जो हो रहा है ईज़ ऑफ लिविंग के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। मैं दूसरा पैनलिस्ट के पास अभी मूव करूंगा, और मेरा पहला पैनलिस्ट है डॉक्टर चरण सिंह, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एग्रो। एज यू गो अहेड, अब मैं आपको आपने सुना अमिताभ जी ने बोला कि क्या क्या हो रहा है देश में, आप भी गवर्नमेंट में रहे हैं, तो आपको एक सवाल मेरे को पूछना चाहिए था एज अ जो पब्लिक पॉलिसी में काफ़ी बरसों बिताए हैं, कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है जॉब्स का, और आप कैसे देख रहे हैं कि अगर जॉब्स कैसे बनेंगे हमारे देश में, कैसे उस विषय पर आप पॉलिसीज़ को इनेबलर जैसे देख रहे हैं, और दैट इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स ऑन ईज ऑफ लिविंग। सो डॉक्टर चरण सिंह, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो जो अभी अमिताभ कांत जी ने कहा उसमें मैं 2-3 बातें और कहनी चाहूँगा। ये जो इन्होंने बात कही कि कॉम्पिटिटिवनेस शुरू कर दिया और प्रदेशों को आपस में compete करना शुरू किया, तो जो उन्होंने कहा नेमिंग एंड शेमिंग, और लोग अपने MP से पूछेंगे, मुख्यमंत्री से पूछेंगे, ये बहुत बड़ी बात हुई। 2018 में ये एक इन्होंने रिपोर्ट भी निकाली सरकार ने, और मानने वाली बात है, इतनी ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट निकाली, उसमें 48 इंडिकेटर्स हैं, हर चीज़ उसमें देखी गई। तो सबसे बड़ी बात उसमें जो मैंने देखी, जो इंडिकेटर्स के साथ उन्होंने ट्रांसपेरेंसी दर्शाई, तो उससे ये हुआ कि एक ऑब्जेक्टिव सामने आ गया, पॉलिसी मेकिंग को हेल्प मिलनी शुरू हो गई। कहाँ पर कमी रह गई, किस शहर में कमी रह गई, 111 सिटीज़ में उन्होंने शुरू किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे जाके और सिटीज़ में एक्सपैंड करेंगे। और अभी तो ये अर्बन में कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है रूरल में भी करेंगे जहाँ ज़्यादातर लोग रहते हैं। तो ये जो कॉम्पिटिटिवनेस शुरू हुई उस रिपोर्ट से, 2018 में जो रिपोर्ट शुरू की गई, वो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात हुई। तो ये सरकार को मैं तो बधाई देनी चाहूँगा कि उन्होंने इस तरीके की नीति अपनाई कि हम लोग सबके सामने जाके खुलकर ट्रांसपेरेंटली बात कर सकें और कहें यहाँ पर हमारे पास कमी रह गई, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ गए। तो उसमें अगर आप उनके जो 48 इंडिकेटर्स हैं उसमें पानी भी है, बिजली भी है, ये सारे उसमें हैं, और बहुत ही
क्लियर तरीके से उसको कहा गया। इसके अलावा उसमें इन्होंने एक सर्वे भी किया, सरकार ने 30% उस इंडेक्स में सर्वे को भी वेटेज दी। तो मुझे लगता है कि सरकार का ये कदम बहुत सराहनीय योग्य कदम है और आगे बढ़ना चाहिए। आपका जो प्रश्न अभी आपने मुझे एक अर्थशास्त्री होने के नाते पूछा भी है और पब्लिक पॉलिसी में जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बारे में पूछा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खास करके इस समय में, इस दौरान जब कोविड से हम लोग उभर रहे हैं और सारी दुनिया में ये कोविड ने बहुत महामारी की और उससे पूरी दुनिया में ग्रोथ पे फ़र्क पड़ा। कहाँ पर हम सबसे तेज ग्रोथ वाले देश थे और कहाँ पर कोविड के कारण हम थोड़ा पिछड़ गए, तो इसलिए उसमें एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क आया। आपके प्रश्न में इसलिए भी वजन है क्योंकि दुनिया भर में ये कहा गया कि हमारे देश में लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे क्योंकि उनका रोज़गार हाथ से चला गया। तो सरकार ने क्या क्या किया पिछले 1.5 साल में, अगर आप देखिए तो सरकार ने सपोर्ट करने के लिए दोनों साइड, डिमांड और सप्लाई में सपोर्ट करने के लिए समय समय पर आकर अपनी नीति अनाउंस की और उस नीति में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एक खासियत होती है कि उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है वो 2 से 3.5% होता है, कहाँ कहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। आपने देखा होगा कि अखबारों में हर जगह आपने पढ़ा भी होगा, एक दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम बन रहा है, नया पार्लियामेंट बनने वाला है। 75 साल देश को आज़ादी हुए, अभी तक हमारे पास अपना पार्लियामेंट नहीं था। वो इज़्ज़त की बात है, स्वाभिमान की बात है, वो तो है ही है। पर जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है तो करीब 275 इंडस्ट्री को उससे फ़ायदा मिलता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं। मेरा तो विचार है कि सिर्फ दिल्ली में ही ऐसा नहीं होना चाहिए, हर प्रदेश में अगर इस तरीके से सरकार ऐसे काम शुरू कर दे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के, तो उससे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है। अगर 275 इंडस्ट्री को आप एकदम उभार के सामने लाएं तो आप देख लीजिए उसका एम्प्लॉयमेंट पे कितना असर पड़ेगा। और अगर हर प्रदेश में यही एक्टिविटी शुरू हो जाए, अब एक प्रश्न उठता है जो मुझे कई बार कहा जाता है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर कहाँ है अगर ऐसे सब करें। पर मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि स्टॉक मार्केट तो एक हर रोज़ नई बुलंदी पे जा रही है, इसका मतलब परचेजिंग पावर है, सिर्फ एक्टिविटी जनरेट करनी है। दूसरी साइड आप देखिए, कार और मोटरसाइकिल जिस तरीके बिक रहे हैं, ट्रैक्टर बिक रहे हैं, उसका मतलब ये भी है कि परचेजिंग पावर है। जहाँ तक खेती बाड़ी और कृषि का सवाल है, वहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ हुई है और रबी और खारिफ क्रॉप अच्छे आ रहे हैं और गवर्नमेंट ने भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा कर दिया है। और जो मनरेगा की स्कीम है जिसमें सपोर्ट किया है, पिछले वर्षों से देखें इस साल तो बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट किया है, तो लोगों के पास परचेजिंग पावर है। अभी अमिताभ कांत जी ने बताई बात कि 3 करोड़ घर बने हैं, घर में भी यही चीज़ होती है, 275 इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है। तो मुझे लगता है सरकार को इसी नीति से इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने अनाउंस किया उसको फाइनेंस करके आगे बढ़ना है। उससे आपने भी अपने शुरू की बात में कहा कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। अभी इन्होंने भी कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी की अभी ज़रूरत है, सड़कें तो बन ही गई हैं, अब डिजिटल कनेक्टिविटी भी अपने साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट लेके आती है। तो मैं ये तीन चीज़ें कहनी चाहता हूँ। सरकार को पहल लेनी चाहिए, जैसे यहाँ पर सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम बन रहा है, हमें स्वाभिमान के साथ बाकी प्रदेशों में भी ऐसे। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, कैनबरा एक नया सिटी बना दिया। नया सिटी बनाने से इमेजिन करिए कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। उनकी अपनी सिटी है कैनबरा, जो बड़े स्वाभिमान से वो कहते हैं। उसी तरीके हम भी ये कर सकते हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो जोर दिया है उसे जारी रख सकते हैं। थैंक यू। आपने बहुत ही 3 इम्पॉर्टेंट विषय में बात किए हैं। कंस्ट्रक्शन जो इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग है, हाउसिंग जो सबको ज़रूरी है, और ये सब मैं देखता हूँ, ये सब अगर हम ठीक करेक्ट ढंग से कर सकते हैं तो ईज़ ऑफ लिविंग अपने आप से ही इम्प्रूव हो जाएंगे। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। हमने बोलते हैं कि ईज़ ऑफ लिविंग अगर सबको पास पहुंचना है, वी कैनॉट डू इट विदाउट द इंक्लूसिविटी ऑफ ईच एंड एवरी वन। सो इसमें ट्राइबल पॉलिसी, ट्राइबल गवर्नेंस, ट्राइबल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सो डॉक्टर तिवारी जी, आप कैसे देख रहे हैं कि हमारे फोकस ट्राइबल्स पे और उनके ईज़ ऑफ लिविंग कैसे चेंज हुए हैं देश में? दिस टर्म ईज़ ऑफ लिविंग हैज़ नेवर बीन मोर पॉपुलर। अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा
उसका कारण है कि आउटकम जो है विजिबल अब हो गया है, काफ़ी हमें दिख रहा है और मेजरेबल आउटकम्स आ रहे हैं। और मैं ट्रैवल के पहले आपको पंचायती राज सिस्टम के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि कुछ हद तक वो रिलेटेड भी है। 2.5 जो है लाख हमारे पास ग्राम पंचायत हैं अभी, जिसमें 31 लाख जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और आपने जैसे कहा महिलाओं के बारे में 14 लाख महिलाएं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये दायरा है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए लोकल लेवल पर। और इसमें आप देखें तो ये सारी चीज़ें जो हैं पंचायत की बेसिक जो रिक्वायरमेंट यही है कि बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान करें। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आई है GPDP, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। इस पर्टिकुलर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के बारे में मैं इसलिए बताना चाहूँगी कि जितनी भी डिसीजन मेकिंग चीज़ें हैं इसी के थ्रू होती हैं। अभी के समय में अगर हमारे पास 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, तो कितने GPDP अप्रूव्ड हुए हैं या जितने GPDP जो है वो बने हैं, तो आपको खुशी होगी जान करके कि अराउंड 2.40 लाख ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अप्रूव हो चुके हैं। और इसके अलावा अभी तक जो मसला ये रहता था कि पंचायत के पास अपनी फ़ंड नहीं हुआ करती थी, या फ़ंड भी होती थी तो टाइड फंड होती थी, लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन ने काफ़ी ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ जो हैं अनटाइड फंड्स दे दिए ग्राम पंचायत को। तो इसके वजह से जो है इट कैन बी सेड कि बहुत ही मेजर इश्यूज़ हुए। ये जो फंड ट्रांसफर्स हुई हैं ऑलमोस्ट आप इसको कह सकते हैं कि 3% 13 ज़्यादा हैं पहले से जो हुई थी। और ई ग्राम स्वराज एक जो पोर्टल बनाए गए हैं, जिसके बारे में कांत साहब भी कर रहे थे और आप लोग भी बात कर रहे थे। इट्स अ इंटीग्रेटेड डिजिटल पोर्टल जहाँ पर जितनी फ़ंड ट्रांसफ़र होती हैं उसकी प्लानिंग कैसे होती है, वन स्टॉप जो एक प्लेटफॉर्म है उसको देखा जाता है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, ऑडिट कैसे होती है, और एक मोबाइल ऐप के थ्रू आप ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो कहीं भी किसी भी जगह बैठा हुआ एक इंसान जान सकता है कि चूरू में या फिर रनिया में, फॉर इंस्टेंस झारखंड में क्या है, इस ग्राम सभा क्या कर रहा है। इससे ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग भी काफ़ी हद तक आगे बढ़ी है, क्योंकि आपके पास एक स्टॉप में सारी अवेलेबिलिटी हैं। अब आप बात करें ट्राइबल, या इसमें एक और भी मैं ऐड करना चाहूँगी, स्वामित्व योजना जो अभी आई है, ये बहुत ही बड़ी एक आप उसको कह सकते हैं स्कीम है या इसके बारे में है, और ये पंचायत का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि इसके पहले लैंड जो रेजिडेंशियल लैंड्स थे उसके कोई रिकॉर्ड नहीं होते थे गांव में। लेकिन अभी के समय ड्रोन जो है एक टेक्नोलॉजी के थ्रू, इसके तहत आपकी कितनी डिमार्केशन है और रेवेन्यू विलेज की कितनी डिमार्केशन है, ये सारी चीज़ों का पट्टा आपके पास है, कागजात आपके पास हैं। इस वजह से आप ये कर सकते हैं कि आपको कोई भी एक आम नागरिक को लोन लेना है तो ये अपने कागजात लेकर उनके पास जा सकता है, लोन ले सकता है। आपको किसी भी तरह की लीगल डिस्प्यूट्स में, मेजर लीगल डिस्प्यूट्स होती थी लैंड के वजह से गांव में, तो ये लीगल जो है डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो सकती हैं। और जो ग्राम पंचायत को एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ रेवेन्यू आप कह सकते हैं वो मिल गया, क्योंकि अभी तक ओन रिसोर्सेज तो बहुत होती नहीं थी, तो इस तरह की टैक्सेस से ओन रिसोर्स हो सकता है। और इसके साथ GPDP में बहुत बड़ा इससे फ़र्क आया है, क्योंकि जब उनके पास लैंड रिकॉर्ड है तो उन्हें कहाँ से नाला निकालना है या कहाँ पर किस तरह की सुविधा प्रोवाइड करनी है बेसिक सर्विसेज के लिए, उसका पूरा मापदंड वो कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बातें मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहती हूँ। ये पंचायती राज की बात हुई। आप बात करते हैं अगर ट्राइबल की, तो मैं एक नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट देख रही हूँ, उसकी स्पेशल डायरेक्टर हूँ। ये अभी कंसेप्चुलाइजेशन फेज़ में है, इसलिए शायद मैंने शेयर नहीं किया। इसमें हमने एक प्रोग्राम जो किया है गोइंग ऑनलाइन, दैट इज़ गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, डिजिटलाइज्ड प्रोग्राम है, जिसमें तकरीबन 1000 ट्राइबल यूथ्स को जोड़ा गया है और इन्हें और 2500 इसमें मेंटर्स हैं जो अपने एरिया में दे हैव मेड दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर एरियाज, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इसमें बहुत अलग अलग प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको इन बच्चों के साथ जोड़ा गया है और इन्हें ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेनिंग दे रहे हैं।
7 महीने की इनकी ये ट्रेनिंग होती है और 2 महीना किसी इंडस्ट्री के साथ इन्हें इंटर्नशिप मिलती है। ये ट्रेनिंग जैसे एग्रो प्रोसेसिंग की बात इन्होंने करी उसकी दी जाती है, बी कीपिंग की दी जाती है, या उन्हें कोई भी आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स की दी जाती है। इस तरह की बहुत तरह की, एंड दे आर डेवलप्ड एज अ एंटरप्रेन्योर्स एंड एक्सपर्ट्स इन देयर विलेज। तो एक अगर एक्सपर्ट डेवलप हो जाता है एक गांव में, एक पर्टिकुलर सेक्टर में, तो ये कास्केडिंग इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो एक इस तरह का मसला आया है। इसके अलावा आप देखें तो इतने सारे जो आप बाहर के जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर हम इसको कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को जोड़ा गया है। एक पोर्टल शुरुआत की, चूँकि अभी हम ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एक स्वास्थ्य पोर्टल शुरुआत करी गई है। इसमें आप जो भी ट्राइबल हेल्थ है, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं, या फिर आपके जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, केस स्टडीज़ हैं, सभी उस पोर्टल पे लाए गए हैं। और उसमें एक सिकल सेल बनाया गया है, सिकल सेल एक सेक्टर बनाया गया है। मैं जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगी कि सिकल जो सेल डिजीज़ है ट्राइबल्स में मैक्सिमम पाया जाता है और उनकी जो डेथ रेट भी सबसे ज़्यादा बिकॉज ऑफ सिकल सेल होती है। तो ये पूरी ही डेडिकेटेड पोर्टल है सिकल सेल में, उसमें पेशेंट्स जो है रजिस्टर भी करते हैं। वन स्टॉप पोर्टल, उनके पास मालूम है कि ब्लड बैंक कहाँ है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम कर रही है, इसे कैसे अप्रोच किया जाए, या उनकी रजिस्ट्री हो गई तो उसके बाद एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ, तो इस तरह से करके एक बहुत ही बड़ा ये इसमें काम हुआ है, जिसे आप कह सकते हैं कि ये स्वास्थ्य पोर्टल जो चल रहा है। और इसके अलावा अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आई स्तूपा है, तकरीबन 20 गांव में पानी वापस लाया गया पूरे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के थ्रू। आई स्तूपा को रिवाइव किया गया, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को वापस रिवाइव किया जा रहा है एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्हें कनेक्ट किया जा रहा है। वन स्टॉप कनेक्शन में ये सारे लोग आगे आ रहे हैं। 20 गांव, तकरीबन 20 गांव के लोग वापस अपने गांव में लेह में आए, ये आई स्तूपा के कारण। सिकमॉल जैसे देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जो वहाँ पर एप्रिकॉट्स होते थे, ड्राई एप्रिकॉट्स लेह लद्दाख में, जिसकी मार्केट वैल्यू, इंटरनेशनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है। ये ड्राई हो जाते थे बिकॉज इनकी ड्राइंग प्रोसेस वाज नॉट मॉडर्न। ये बिल्कुल ही ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से, यानी इसके थ्रू इन्हें बताया गया कि प्रोसेस कैसे की जाती हैं। कुछ गाँव को इन्होंने अडॉप्ट किया और इन्हें ट्रेनिंग दी, इनकी कैपेसिटी बिल्ड की, और अभी जो उसकी कितने लागत पर ये एप्रिकॉट्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और उनमें जो फंगस इन्फेक्शन लगता था अब वो नहीं लग रहा है। और इसके अलावा आप इस तरह की बहुत सारे चीज़ें आप देखें जिन्हें ग्रास रूट्स लेवल पर किया जा रहा है। तकरीबन 150 नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है थ्रू आउट इंडिया में। आप एक जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, तकरीबन 20,000 फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग की शिक्षा दी जा रही है, या शिक्षा ना कहें आप, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कैसे किया जाता है। एक फाउंडेशन है जिसे, और इनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पूरे भारत में नहीं है क्योंकि 117 चोजन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ट्राइबल्स जो सबसे ज़्यादा हैं, या फिर उनकी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स हैं। इस तरह से कुछ क्षमता है जिसके कारण से इनको चुना गया है। तो ये इनको जोड़ना और एक डिजिटल एक माध्यम है जो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, और एक जो जिसे कह सकते हैं कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी बुलाना, ये वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से हो या जैसे भी माध्यम में हो, अपने आप में एक बहुत ही बड़ा आप इसे कह सकते हैं प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है, जिसे आप ईज़ ऑफ लिविंग बोलें, या जनता जो है या फिर कॉमन मैन जो है इज़ एबल टू जनरेट हिज ओन और हर ओन रिसोर्सेज इन लाइवलीहुड जनरेशन एंड ऑल्सो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन अदर एरियाज। So this is briefly I wanted to say. Great story. तो धन्यवाद। और आपने जो आज विस्तारित रूप से हमको बताएं कैसे विलेज में, एक गांव में, पंचायती राज में या ट्राइबल्स एरिया में क्या क्या हमने सुविधा उपलब्ध कराए हैं और क्या क्या स्कीम्स आपने चालू किए हैं। इसमें से काफ़ी सारे हमारे पास और इच्छा और भी होते हैं कि और भी जाने। आपको कुछ सवाल है, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं तो पहले मैं प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी को पूछूंगा। आपने भी काफ़ी सारे पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट में इसका काम किए हैं ऑन अ लॉट ऑफ एरियाज एक्चुअली ऑन डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स। सो ये जो अगर आपने सुने हैं what Mr. Khan started with by saying things which are happening, how all of these schemes, as you see, are so very important in an emerging economy like us,
जो will touch every person in this country. What is your take on this entire? I think the whole panel has captured several schemes, and Mr. Amitabh Kant gave a full sort of illustration of what different schemes are. I, Chandrajit, feel there are three broad trends that we should not miss out when we think about development economics associated with these changes that we are looking at. The three broad pointers that I see, I think they have in a way transformed our thinking about the development economics and the way policy formulation process has been approached so far in the country. Number one is definitely to move away from quantity to quality. So we are not interested in how many schools, how many hospitals. We are interested in what quality of education, what quality of hospitals, or even when we are talking about food security, we are not concerned about food security per se, but we are concerned about nutritional security. So we are talking about quality, and that quality component is absolutely important, whether it is about specific schemes and their focus, or it is concerned about quality of life. So that's what we are going ahead with, and I think consistent commitment of the government led by, of course, Niti Aayog is about sustainable development goals. विकास के जो सतत लक्ष्य हैं उसकी तरफ राज्य सरकारें और देश खुद कैसे आगे जा रहा है इसकी तरफ हमारा ध्यान है। और आपने शुरू में कहा साउथ साउथ कोऑपरेशन जो हमारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और कई अफ्रीकन देशों के साथ सहयोग है वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए है। तो फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इज दिस ह्यूज शिफ्ट फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी। सेकेंड पॉइंट जो अमिताभ कांत जी ने एक सवाल का जवाब देते समय कहा कि भाई वी आर कंसर्न्ड नॉट अबाउट एंटाइटलमेंट, वी आर एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप, एंड दैट्स अ ह्यूज शिफ्ट इन द गवर्नमेंट पॉलिसी. You look after the, I would say almost 50% of the schemes which Finance Minister has announced in last 4-5 years, in each of the scheme, you would see some contribution coming in from the beneficiary. Or beneficiary getting rewarded in terms of their returns to whatever their due was. तो ये जो सहभागिता की आवश्यकता है सरकारी कार्यक्रमों में, इसके प्रति एक जोर दिया गया है. तो आपको इंटाइटलमेंट नहीं है, आपका एंटरप्रेन्योरशिप है. और ये चंद्रजीत एक आई थिंक एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है देश के मानसिक सोच में, क्योंकि 70 साल में हमारा मानसिक विकास ऐसा हो गया कि सरकार हमें क्या दे रही है, सरकार की क्या घोषणा है, बजट आएगा तो लोगों का इंतजार होगा कि क्या घोषणा हमको मिलने वाली है. अब यह है कि आप आगे बढ़कर क्या ले सकते हैं. अब उसमें चाहे आप देखिए 43,000 हमारे देश के अंदर स्टार्टअप्स खड़े हो गए. सारा लॉकडाउन 1 में पीपी का एक बड़ा उद्योग खड़ा हो गया, 7,000 करोड़ रुपए का हमने उद्योग खड़ा करके रख दिया. सारा कोविड का क्राइसिस हमने डोमेस्टिक स्ट्रेंथ के बल पर आगे लेकर के आ गए. तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने का एक हमने मादा देश के अंदर जगाया, एक इंकरेजमेंट किया और उसको फाइनेंस से, उसको टेक्नोलॉजी से, उसको इंक्यूबेटर से सबसे जोड़ा. ये अपने आप में एक जो औद्योगिक क्षमता का एक बड़ा उदाहरण है. मुझे लगता है ये सामने खड़ा हो गया. एक बार में चाइना ने जो हमारे साथ किया, उसमें चाइना से हमारा इंपोर्ट हम $10 बिलियन तक हम उसको क्वेश्चन कर सके. आप देख रहे होंगे जब हमने 2019 में हमारे साथ चाइना का ट्रबल हुआ, 92% आवर इंपोर्ट was डिपेंडेंट ऑन APIs फ्रॉम चाइना. आज वो हम घटा करके 74% पे लेके आ गए. तो ये कहाँ से हुआ? ये सरकार के इसी सोच के चलते हुआ कि हमारा एंटाइटलमेंट नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए. ये सेकंड पॉइंट है. तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बारे में भी अमिताभ कांत जी ने कहा, चिरंजीव सिंह जी ने भी कहा, और वो है सरकार नहीं समाज हाँ. नो टू गवर्नमेंट, यस टू कम्युनिटी लेड पार्टिसिपेशन. एंड दिस हैज प्रूव्ड सो वेल in the COVID crisis. We could manage the whole crisis because community came forward, and government strengthened that. Government strengthened in terms of creating, say, 10,000 farmer producer organizations, 10,000 FPOs, and we made budgetary provision of 6,000 crores for that. Huge. You look at the number of self-help groups which have come forward.
अभी मुझे मध्य प्रदेश सरकार में उनके राज्य नीति आयोग की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और उसके उपाध्यक्ष होने के नाते कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में मुझे जाने का मौका मिला, चाहे ढिंडोरी हो, चाहे उमरिया हो, शहडोल हो, ये सारे ट्राइबल डोमिनेटेड हैं। निपुर जी उसका जिक्र कर रहे थे। और इन सारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में मैं जब गया तो चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना हो, चाहे वो हमारे एसएचजी को स्ट्रेंथन करने की हमारी जो NURLM है और NRLM है, उन सब में हम लोगों ने एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। एक परिवार तो मुझे ऐसा मिला जिसमें सिर्फ सास और बहू 2 लोग रहते थे घर में, जो फादर इन लॉ है वो और उसका हस्बैंड दोनों गुजरात में काम करने के लिए चले गए। उन लोगों को जो प्रधानमंत्री की ग्रामीण सड़क योजना है जिसका आप स्वयं जिक्र कर रहे थे, उसका उन लोगों को क्या एडवांटेज मिला मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। उस गांव में जब हमको ले गए, हमारे साथ में CO पंचायत भी थे, वहाँ के ढिंडोरी के कलेक्टर और उनके टीम के लोग भी थे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे उस गांव में, उस महिला के घर में, तो उस महिला ने अपनी भाषा में हम लोगों को बताया कि उसके पास में ये घर में से दोनों आदमियों के चले जाने के बाद कुछ नहीं था, घर में 2 बच्चे थे और उन लोगों को समझ में नहीं आता क्या करें। तो CO पंचायत ने उनके पास में जो हमारी NRLM है उस योजना के चलते हुए उनको गोटरी और पोल्ट्री ये इसके लिए पैसा दिया। NRLM से उनको वो पैसा उसके कंस्ट्रक्शन के लिए मिला। बाद में उन लोगों को एक सोलर पैनल दिया गया और उस सोलर पैनल से एक पास में घर की वेल मिला। जो प्रधानमंत्री ने 2006 में पट्टा देने की बात की थी, वो कार्यक्रम कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो अभी जाके इम्प्लीमेंट हुआ, जिसका नुपुर जी ने जिक्र किया कि उनको जियो टैगिंग के थ्रू इंडिविजुअल पट्टे दिए गए। उस महिला को जब वो पट्टा मिला, उसका हस्बैंड भी गुजरात से वापस आ गया और उसका फादर इन लॉ भी वापस आ गया। अब ये पूरी फैमिली अपने आप में आज वहाँ पर रह रही है। मैं स्वयं जाके उन लोगों से मिला और ये बदलाव मैंने देखा। तो ग्रामीण क्षेत्र में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये कुछ लोगों को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, हमें कुछ दिख नहीं रहा है। मेरा उन लोगों से ये कहना है कि वो लोग जाएं और गाँव में जाके देखें कि ये बदलाव कैसे हो रहा है। Absolutely, thank you Sachin ji. I'll request Amitabh Kant ji to give his last final advice, because we know that you have other commitments, but ये जो अब हमने कहानी सुने, 3 डिफरेंट एरियाज थे, 3 विभिन्न अंश से इन्होंने जिक्र किए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर का, हाउसिंग का, कंस्ट्रक्शन के, हमने ग्राम पंचायत के बारे में सुने हैं। वी हर्ड अबाउट वन वेरी, आई नो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट। मैं इतना जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये जो ईज़ ऑफ लिविंग का बात जो हम कर रहे हैं, इसको हम कैसे सस्टेन करें? हाउ डू वी मेक इट सस्टेनेबल थ्रू द ईयर्स टू कम? व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? तो चंद्रजीत जी, 2-3 चीज़ें बहुत जो आज के चर्चा में निकली। एक तो ये समझना ज़रूरी है कि सरकार के हर कार्यक्रम में एक यूनिवर्सलाइजेशन अप्रोच था। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है कि इसमें ये नहीं था कि इस गांव में हम ये देंगे, उस गांव में नहीं देंगे, इस मज़हब को ये देंगे, उसको नहीं देंगे, या हम कुछ लोगों को देंगे, कुछ को नहीं देंगे। ये था कि पूरा हम सैचुरेट करेंगे। हम एक घर का कार्यक्रम ला रहे हैं या बिजली का ला रहे हैं या पानी का ला रहे हैं, हम इसको पूरा यूनिवर्सलाइज करेंगे, पूरे देश में सब तक पहुंचा देंगे। सब तक, कोई भी आदमी किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सब तक पहुंचाएंगे। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ की कि हर कार्यक्रम में जियो टैगिंग हो, डिजिटाइजेशन हो, आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग हो, सब में टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग किया गया। रोड मेकिंग हो, हाउस कंस्ट्रक्शन हो, सब में टेक्नोलॉजी को उपयोग करके, दुनिया की जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी थी उसको उपयोग करके हम लोगों ने लीप फ्रॉगिंग की। और तीसरा मेरे विचार से जो सबसे ज़रूरी है, जो आपका सवाल का जवाब देता है कि अगर हमें आगे चलना है तो इस सारे कार्यक्रम को एक जन आंदोलन बनाया गया। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं रह गया। और ये इन सब प्रोग्राम्स में अगर हम लोग को विजेता मिली है, वो इसी वजह से मिली क्योंकि जन सहयोग था। और ये एक जन आंदोलन की तरह इसको हम लोग ले गए और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग की और सबको मिला के
स्टेट्स को मिलाया, पंचायत को मिलाया, डिस्ट्रिक्ट को मिलाया और सबको मिलाकर इसको ग्रास रूट पे इम्प्लीमेंट किया इस कार्यक्रम को। और ये जन आंदोलन ही देश को सस्टेन कर पाएगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में विजेता दे पाएगा। What I would like to do, हमारे पास इतना एक स्ट्रॉन्ग ऑडियंस मौजूद है, वी वुड लाइक टू ब्रिंग इन द ऑडियंस फॉर क्वेश्चंस। देयर यू गो। नीति आयोग का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है अटल टिंकरिंग लैब, एंड अमिताभ कांत जी जो हैं वो हमारे ऑनरेबल पैनलिस्ट जो हैं वो उसके हायरार्की में टॉप पर हैं, और मैं ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही हूँ। आई एम अ साइंस टीचर एंड प्राउड इन चार्ज ऑफ अटल टिंकरिंग लैब ऑफ माई स्कूल। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं किसी स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, एक कमेंडेबल इम्प्रूवमेंट मैंने अपने स्टूडेंट्स में देखा है अटल टिंकरिंग लैब का, और इसमें मैं शेयर करना चाहूँगी मेरे स्टूडेंट्स ने एक ऐसी ऐप बनाई है को एग्ज़ाम्स अंडर दिस अटल टिंकरिंग लैब, जिसमें उनको ना व्हाट्सएप पे डिपेंड करना पड़ेगा, ना उनको यूट्यूब पे डिपेंड करना पड़ेगा, एंड वी आर एबल टू डेवलप अ सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन स्कूल फॉर माई स्टूडेंट्स, एंड दिस इज़ एक्चुअली कमेंडेबल। क्योंकि जब हम व्हाट्सएप खोलते हैं या उससे पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम बाकी चीज़ों में बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा और टाइम बहुत वेस्ट होता है, एंड द स्टूडेंट्स आर एक्सपोज टू सो मैनी थिंग्स विच आर नॉट गुड फॉर देम। सेकेंड थिंग कि इसी में ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, जिसमें लोग इसको लॉकडाउन कह रहे थे, सितंबर 2020 में 76 स्टूडेंट्स ऑफ माय स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया ग्लोबल डिजिटल मॉडल यूनाइटेड नेशन में। दिस इज़ बिकॉज ऑफ ईज ऑफ लिविंग, जहाँ बच्चे सोच भी नहीं सकते थे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे मॉडल यूनाइटेड नेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, वहाँ उन्होंने डिजिटली ग्लोबल लेवल पे डेलीगेट्स के साथ इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कशंस की, पहले ट्रेनिंग सेशंस लिए, और एक्चुअली में उन्होंने मॉडल यूनाइटेड नेशंस जो था उसमें पार्टिसिपेट किया। और जो बच्चे पहले यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ नहीं जानते थे, नाउ दे एस्पायर टू रिप्रेजेंट देयर कंट्री एट Geneva in United Nations, and this is certainly a beautiful, example of ease of living. Thank you so much. मैं आपको और आपके स्कूल को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि नीति आयोग ने ये बहुत बड़ा एक मूवमेंट खड़ा किया अटल टिंकरिंग लैब्स का और इंक्यूबेशन सेंटर्स का, और करीब 7,500 टिंकरिंग लैब्स खोले स्कूलों में और गाँव में जा के खोले। और उससे क्या हुआ कि ये नई टेक्नोलॉजी जो थी, 3D प्रिंटर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, हम बच्चों तक पहुंचा पाए, 5वीं 6वीं 7वीं क्लास के बच्चों तक। तो उनका भी टेक्नोलॉजी से बहुत, उनको एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिली और बहुत अच्छा काम हुआ है इसमें। और अगर आप देखते हैं तो स्कूल, हम इस पर भी हम लोगों ने कंपटीशन किया, सिलेक्शन में भी कंपटीशन किया, और आगे जाकर हम इनकी स्कूल्स की रैंकिंग करते हैं टिंकरिंग लैब्स में। तो ये जो एक टेक्नोलॉजिकल माइंडसेट आया, साइंटिफिक अप्रोच, जिसकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बात की, एक साइंटिफिक माइंडसेट आया, और वो माइंडसेट का बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये पानी पहुंचता है, बिजली पहुंचती है, घर पहुंचता है, तो हम सब लोगों को उसको सस्टेन करना ज़रूरी है, उसको मेंटेन करना ज़रूरी है, और उसको आगे चल के इम्प्रूव भी करना ज़रूरी है। और इस सब चीज़ों के लिए एक साइंटिफिक माइंडसेट लाना ज़रूरी है। और अगली पीढ़ी को अगर वो टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड होंगे तो भारत को एक बहुत बड़ी लेवल जंपिंग कर पाएंगे हम लोग। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, आपको भी और आपके स्कूल को भी। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, क्योंकि आपने जो आज बताए उसमें से एक बात तो बहुत ही क्लियर हमारे पास आ रहे हैं कि हमको आगे जाते हुए एक सबको इंक्लूड करना है, और दूसरा ये जो विश्वास आप आज यू आर विनिंग द कॉन्फिडेंस, यू आर विनिंग द ट्रस्ट of people, that is extremely important as we go ahead, and we thank you and we wish you all the best and look forward to working very closely with you. Thank you. Ladies and gentlemen, we are now going to take a very short break, and thank you very much for being with us for this session. गरीबों का हो रहा कल्याण, कोरोना काल में दिलाया वतन में काम, अब जीवन जीना हुआ आसान, किसानों को मिल रहा सम्मान, अब गरीबों को अपना पक्का घर, टॉयलेट, बिजली, गैस,
साफ पीने का पानी, डिजिटल बैंकिंग, सस्ती मोबाइल कनेक्टिविटी और तेज इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा जैसे अन्य नागरिकों को मिल रही है, गरीबों तक भी पहुंचे। देश भर में दिया मुफ्त राशन, रोजी रोटी का भी हो रहा निदान। जनधन खाते में सीधे आई रकम, पेंशन और मकान की मुश्किल हुई खत्म। कम लागत बढ़ती आय का मिला सहारा, ग्रामीणों को कर्ज से मिला छुटकारा। जैसे उज्ज्वला गैस का सब्सिडी हुआ, किसान सम्मान निधि हुआ, ये सब डायरेक्ट हमारे खाते में आने लगा। तो बीच बिचौलिए जो कभी प्रधान थे, लेखपाल थे, वो कभी योजनाओं का लाभ लेने में आधा तिहा पैसा ले लेते थे, उससे बहुत बड़ा छुटकारा मिला है। राशन भी मिल रहा है फ्री में हम लोग के, और वृद्धा पेंशन भी सबको मिल रहा है, गरीब को बहुत सहारा दे रहे हैं। ईज ऑफ लिविंग बना जीवन का मूल मंत्र, मिलजुल कर मजबूत हो रहा अपना लोकतंत्र। मजदूरी करने जाते थे, बच्चों का देखभाल भी नहीं हो पा रही थी, और जो मुर्गी पालन जहाँ से हम लोग शुरुआत किए हैं, तो हम लोगों की घर की भी हालत सुधार है। प्रधानमंत्री का अब यही है नारा, अविरल बहे समग्र विकास की ये धारा। हम दोबारा हमारे ऑडियंस का पास आ रहे हैं। हम कुछ क्वेश्चंस ऑडियंस से भी लेंगे। पहला क्वेश्चन जो है स्टार्टअप्स के ऊपर है, एंड आई विल कम टू दिस लेडी seated right at the front. Yes, please. A very good evening. I'm Dr. Anasuya Roy, and I'm heading a startup called NanoSafe Solutions, which is currently incubated at IIT Delhi. I have a question related to manpower hiring in a startup. We have observed that startups do play a very important role in shaping the economy and creating jobs for normal people in India. But when it comes to choosing a job in a startup as opposed to choosing a job in an MNC, I have personally seen talented manpower choosing the MNC job because they feel that the job security is much higher there. My question specifically is, how do we break this stereotype, and how do we bring a change in the mindset of such talented people? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आज स्टार्टअप्स में हम देख रहे हैं कि इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है स्टार्टअप्स के ऊपर, और स्टार्टअप से आज हमारे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी काफ़ी होने का हमारा उम्मीद है, और हो भी रहा है अभी। सो ये जो सवाल है कि राइट मैन पावर स्टार्टअप्स में रहे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। हम हमारे पैनल का पास आएंगे इस सवाल के लिए, बट मैं आपका पास आए उससे पहले मैं और एक सवाल ऑडियंस से लूँगा। प्लीज़ गो अहेड। I'm Sushil Vaishnav. I'm founder of the startup KNP Arises Green Energy Private Limited, and the question is for Mr. Professor Sachin Chaturvedi. So we are basically addressing the 4 SDG goals of the in our startup, where clean air, healthy life, clean water, and more employment. Our startup definitely being supported by Government of India initiative, where they are supporting all the startups. But despite having addressing the 4 major goals, like recently we got selected into the Asia Pacific competition, where we are top 6 startup, and we are getting such a great recognition outside India. But in India, the problem which we are solving is the waste cooking oil, which is actually continuously getting used, and your family and my family, everybody is eating it, and they are getting sick. Despite knowing everything, why the enforcement is not there, why we are not getting the required support, and what we should do, in order to create that mass awareness that all our families can be more, healthy. Thank you. Good. So we have two questions, both startup community से हैं, तो मैं पैनल का पास जाऊंगा. Perhaps I can start with Professor Sachin Chaturvedi, and then I'll come to you, Dr. Charan Singh. Thank you. Thanks. I think both questions, as you rightly said, are extremely pertinent and important. First, Dr. Anasuya Roy, to your question, ये हमको देखना पड़ेगा कि आज जो हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, करीब 4.7 लाख लोग करीब
40,000 स्टार्टअप्स में लगे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। शायद ये मानसिकता के बदलाव का हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि लोग अगर आप देखें तो कई ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी का जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था कि एक बार नौकरी में लगे और अब वो आखिरी तक चलते जाएंगे, इसके प्रति अब समाज में सोच भी बदल रहा है और लोगों का उस शॉर्ट टर्म में भी बदलाव आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे मानसिकता बदलेगी, एकदम से नहीं बदलेगी। जिसको हम इनफॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जिस दौर से आज कई विकसित देश गुजर रहे हैं, हम देखते हैं कि अभी हम लोग थोड़ा सा उससे दूर हैं। अभी भी हमें जॉब सिक्योरिटी, जॉब सर्टेनिटी, वो मुद्दे हमारे सामने हैं। धीरे धीरे सरकार की तरफ से सोशल सिक्योरिटी के जब और ज़्यादा पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों की चिंताएं धीरे धीरे कम होंगी और मुझे लगता है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर वैष्णव, आपका जो सवाल है, आपका स्टार्टअप जहाँ तक मैं समझा गोल 3, गोल 6 और गोल 7 के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट को अगर गोल 1 में मानूँ तो गोल 1 भी उसमें जुड़ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें एक जो अवेयरनेस जिसको कहते हैं उसकी आवश्यकता है। नीति आयोग से अमिताभ कांत जी चले गए, लेकिन वाकई में और प्रयास करने की हमें आवश्यकता है। जो लाइन मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी तरफ भी उस सोच की ज़रूरत है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या विकास के जो सतत लक्ष्य हैं उसको सभी लोग माने और उसको न सिर्फ उद्योग के कुछ लोग बल्कि समाज के साथ हम उसको जोड़ करके, जो स्कूल्स हैं उनके साथ उसको जोड़ करके, बच्चों के साथ जोड़ करके, और जो जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें स्टार्टअप्स को, अगर मान लीजिए हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और चरणजीत जी वहाँ बैठे हुए हैं, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा इंसेंटिवाइज करें, जिन सेक्टर्स में उनको लोन्स की ज़रूरत है उसमें उन्हें और कंसेशनल फाइनेंस अवेलेबल कराया जाए, तो शायद हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ और तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। जब तक इस सारे मुद्दे को हम फाइनेंस के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक इंसेंटिवाइजेशन हो नहीं सकता है। तो इसलिए उसकी तरफ प्रयास की आवश्यकता है। खुद चूँकि मैं रिज़र्व बैंक में भी बोर्ड में हूँ, हम लोग वहाँ बहुत सक्रियता से इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं कि ग्रीन फाइनेंस से हम कैसे जोड़ें। जो रिज़र्व बैंक का जो फंडिंग है, जो उनके फाइनेंसिंग के ऑप्शंस हैं, उसको हम ग्रीन फाइनेंस के साथ कैसे जोड़ें। जब तक ये मुद्दा उस फाइनेंस से जुड़ेगा नहीं, स्टार्टअप्स के फाइनेंसिंग में आएगा नहीं, तब तक लोग उसको अपने साथ लेने में थोड़ी हिचकिचाहट रखेंगे। वेरी गुड। डॉक्टर सिंह, तो पहला सवाल जहाँ तक स्टार्टअप का है और HR हायरिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं IIM बेंगलोर में काफ़ी साल RBI चेयर प्रोफेसर का काम करता रहा। वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर है। आप हैरान होंगे, उस इंक्यूबेशन सेंटर में IIM बेंगलोर के बच्चे नहीं आते। तो उसके पीछे कारण है, लोन ले रखा है सब लोगों ने। पर ये जब मैं स्टैनफोर्ड में 1.5 साल पढ़ा, सिलिकॉन वैली से बहुत इंटरेक्ट किया, तो मैंने वहाँ पर एक सवाल सबसे पूछता था, क्या सिलिकॉन वैली में है जो बॉस्टन में नहीं है, ईस्ट कोस्ट पे नहीं है, और स्टैनफोर्ड के साथ सिलिकॉन वैली का ये जो नाता है। तो एक वो कारण है जहाँ प्रोफेसर खुद बीच में कूद जाता है और कहता है चलो स्टार्टअप करो, पहला $10,000 मेरे से लो और चलो करो। दूसरी बात, जब बच्चे स्टार्टअप में आते हैं या शुरू करते हैं, फेलियर का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो सिलिकॉन वैली के लोगों से जब मैं इंटरेक्ट करता था तो मैं उनसे पूछता था कि आप क्या देखते हैं जब आप फंडिंग करते हैं एक स्टार्टअप की। तो उन्होंने बाकी चीज़ें बताई, फायर इन द बैली, एजुकेशन, दी प्लान, वो सारा बताया। सारा बताने के बाद मैंने कहा ये तो स्टैंडर्ड है, इसमें क्या है, ये तो हर एक कोई लेके आएगा। तो उसने कहा नहीं, एक चीज़ और है, हम देखते हैं अगर ये पहले स्टार्टअप में फेल हुआ है तो देन ही इज़ एलिजिबल फॉर माई फंडिंग। Optimal failures in a startup in Silicon Valley are 2. The third gets funded very well. ये मानसिकता जो हमारी इधर देश में है, हम फेलियर से बहुत डरते हैं। हम सोचते हैं, और स्टार्टअप में जो बच्चे बीच में आते हैं, सब लोग यही सोचते रहते हैं कि अगर हम फेल कर गए तो माता पिता, सोसाइटी, मेरे दोस्त जो अभी बैंक ऑफ अमेरिका में लग गया, गोल्डमैन सैक्स में लग गया, वो इतना कमा रहा है, मैं तो फेल हो गया। वो जो माइंड सेट है ना, वो हमें बदलना पड़ेगा। और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आप मेरे से पहला प्रश्न एम्प्लॉयमेंट पे पूछ रहे थे।
अब देखिए जिस रफ्तार पे देश में जनसंख्या बढ़ी है और जितनी जनसंख्या हमारे यहाँ है, पब्लिक सेक्टर इसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है, प्राइवेट सेक्टर को ही एम्प्लॉयमेंट देनी है। जहाँ हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी का सवाल उठाते हैं वो प्राइवेट सेक्टर ने ही लेके जाना है। आप तो CII से, आपकी तरह ट्रेड एसोसिएशंस को बहुत बीच में जोर डालना पड़ेगा, पर पब्लिक भी तो प्राइवेट सेक्टर है। तो प्राइवेट सेक्टर का जो हम लोग हैं, हम लोग उसमें जो कंट्रीब्यूट करेंगे थ्रू स्टार्टअप करेंगे। तो $5 ट्रिलियन इकॉनमी में स्टार्टअप्स का अहम रोल रहेगा। आप लीड कर रहे हैं, आपने सेटअप किया, बहुत बधाई के पात्र हैं, पर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो HR हायरिंग है, उनको भी समझाना पड़ेगा कि रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर ये फेल हो गया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो आप फेलियर से सीखेंगे वो कभी आप सक्सेस से नहीं सीख सकते। आपका जो सवाल था मुझे बहुत अच्छा प्रश्न लगा। मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो रेडी वाले होते हैं वो सब मेरे लिए स्टार्टअप होते हैं, क्योंकि वो मुद्रा लोन लेके बैठे होते हैं। मुद्रा लोन कोविड के बाद तो बहुत उनको लेना पड़ा, लोकल बॉडी से उन्होंने सर्टिफिकेट लिया और हम 10-10 हज़ार रुपये पे वो रेडी लगाते हैं। और मैं तो उनके समोसे और जलेबी अच्छी दुकान से अच्छा मुझे वहाँ लगता है। आपकी तरह मैं पूरा सहमत हूँ, उनका तेल बार बार वही यूज़ हो रहा होता है और कई बार वो मुझे ज़्यादा स्वादिष्ट समोसा लगता है जो 5 स्टार होटल में मिलता है। पर बात ये है, मैं भी उधर जाके जब खड़ा होता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि हम सब लोग, और अमिताभ कांत जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, ये जिस तरीके जन आंदोलन नहीं बनेगा, ये सरकार, ये बैंक, ये रिजर्व बैंक जितने मर्जी कागजी ऑर्डर देते रहें कि ग्रीन फाइनेंस करो, और मुझे तो सौभाग्य था कि मैं पंजाब सिंध बैंक का चेयरमैन रहा हूँ 3 साल और मैंने देखा है अंदर से क्या हो रहा है। जितने मर्जी ऑर्डर आते रहें, जितनी देर तक हम लोग वहाँ खड़े होकर उससे नहीं पूछेंगे कि भाई साहब ये तेल तो थोड़ा पुराना लग रहा है, ये बदल के थोड़ा, मुझे उसको पता है मैं आता हूँ हर दूसरे तीसरे दिन, अगर मैं प्रेशर नहीं डालूँगा कौन प्रेशर डालेगा। तो मैं बस इतना ही, आपका जहाँ आपने स्टार्टअप शुरू किया है बहुत अच्छी बात है, पर यह भी ज़रूरी है कि हम लोग खुद पार्टिसिपेट करें कंट्री को इम्प्रूव करने में। जहाँ हम लोग सतर्क हो जाएंगे, हमारे लोग भी सतर्क हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं काफ़ी यंग उम्र में PhD करने सिडनी गया था, ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पर बुज़ुर्ग लोग बहुत हैं। वो बुज़ुर्ग लोग क्या करते थे, आम तौर पर पब्लिक इश्यूज़ पे स्टैंड लेके बैठे होते थे। मैं उस टाइम पे यंग था, मैं सोचता था, हम लोग पंजाबी में कहते हैं ना, वेले हैं और कुछ करने को नहीं है। पर इस उम्र में जब मैं बुज़ुर्ग बन गया हूँ, मैं सोचता हूँ वो कितना बड़ा सोशल काम करते थे। कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है वो वहाँ पे एप्लीकेशन दे देंगे, उसके साथ लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे। वो मैं चाहता हूँ कि देश में अगर हम लोगों ने सच्ची में इन देशों से जहाँ हमारे बच्चे जाके पढ़ते हैं, नौकरियाँ ढूंढते हैं, जहाँ स्टार्टअप कैपिटल्स माने जाते हैं, अगर उस तरीके हम लोग भी ये सोच के चले कि हमने अपने देश को इम्प्रूव करना है, वो मेरी राय में एक सॉलिड प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेशन है। पब्लिक सेक्टर रूल बना रहा है, रिजर्व बैंक के बोर्ड में बैठ के रूल बनवा रहे हैं, ग्रास रूट पे हम उनको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। वो मेरी राय में एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। थैंक यू डॉक्टर सिंह। अब हमारे पास थोड़े ही टाइम बाकी रह गए हैं, लेकिन एंटरप्राइज का जब बात हम कर रहे हैं, स्टार्टअप्स का बात कर रहे हैं, मैं डॉक्टर तिवारी से प्रश्न करना चाहता हूं कि हम जब हमारे रूरल एरियाज़ को देखते हैं, विलेज को देखते हैं, ट्राइबल एरियाज़ को देखते हैं, हमारे वहाँ पे बहुत रिच एक हेरिटेज है, एक रिच का ट्रेडिशन है हैंडलूम्स का या हैंडीक्राफ्ट्स का। और आप कैसे देखते हैं इनको, कैसे हम मैस एंटरप्राइज में हम कन्वर्ट कर सके, क्योंकि वहाँ से एक ह्यूज एम्प्लॉयमेंट का भी अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। तो आपको क्या विचार है इस बारे में? डेफिनेटली आई टोटली एग्री विथ यू। दे हैव, इनके पास काफ़ी ही रिच, आप इसको कह सकते हैं, जो हेरिटेज है क्राफ्ट की और हैंडलूम की। इसमें ट्राइफेड एक है, काफ़ी बड़ा काम कर रहा है। इसकी इनकी सिर्फ ये इनको लाता ही नहीं है, इसमें वैल्यू एडिशन ही नहीं करता है, इसकी मार्केटिंग भी करता है। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन इसमें जुड़ा है। इसके अलावा बहुत सारी जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी चला रहे हैं मंत्रालय के तरफ से,
तो इनमें जैसे एस्ट्रोचैम कर रहा है और भी दूसरी कुछ संस्थाएं हैं जिसमें इन्हें आर्टिजन्स जैसे 1000 आर्टिजन्स को ट्रेनिंग दी जाती है। अगर वो कशीदाकारी करते हैं या फिर कोई भी आप जो बैम्बू होता है उससे आप कुछ केन्स के आप कुछ ये सब बना रहे हैं, तो उसमें इंटरनेशनल मार्केट से या फिर नेशनल मार्केट में ही उसको कैसे वैल्यू एडिशन किया जाए और इनको आर्टिजन्स को ट्रेन किया जाए, ये सब उनको सुविधा प्रदान की जाती है। और अगर 1000 लोगों को भी लेकर के चला जा रहा है तो इन्हें ये दिया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्हें मार्केट से जोड़ना, क्योंकि अगर वो बना भी रहे हैं और अपने तक सीमित रह जाए तो शायद उन्हें उसकी वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो मार्केट से जोड़ने का भी काम मंत्रालय के थ्रू, ये जो आपने जैसे कहा कि सिर्फ सरकार ही नहीं, जनता को भी खुद आके अपने आप को असर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस काफ़ी सारे बने हैं जो इनकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं और इसे इंटरनेशनल मार्केट से भी जोड़ रहे हैं। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये है जैसे आदि महोत्सव है, इस तरह की चीज़ बहुत रीजनल लेवल पर इन्हें डिस्प्ले किया जाता है, जहाँ पर वो अपने कल्चरल प्रोग्राम्स भी दिखाते हैं और अपने जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं और जैसे वॉल पेंटिंग्स है, और आप देखेंगे इतनी अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की पेंटिंग्स पाई जाती हैं इनकी। अगर उसे सही में, जो कि अब काम शुरू भी हो गया है, इंटरनेशनली एक्सपोर्ट किया जाए, इतनी माइन्यूट डिटेल्स उसमें होती हैं। मैं कभी होगा तो आपको दिखाऊंगी, इतनी बढ़िया वो कशीदा ये सब डिटेल्स वो बनाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों में इन्हें अवेलेबल किया जा रहा है, ऑनलाइन इसकी डिस्प्ले की जा रही है। बहुत सारे डिस्प्ले करने से ये होता है कि एक अवेयरनेस होता है कि इस पर्टिकुलर प्रांत में इस तरह की पेंटिंग की जाती है और इसे खरीदा जा सकता है, या फिर एक इंटरनेशनल मार्केट या नेशनल मार्केट प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और इन्हें देखा जा रहा है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर प्लीज। या I have a question for Nupur ji. So I'm a doctor at AIIMS Delhi, and we have seen how the government schemes have helped immensely our patients, like Ayushman Bharat, and right now the NDHM, जो digital health mission है जो launch किया गया, it has tremendous potential. My question is, how do we ensure that the digital health mission reaches even to the tribal areas and the areas, the rural areas where digital infrastructure has not yet reached? And by when can we truly say that India is truly digital India? Great. I think it's a very important question. The whole issue that is likely to come up, I think, is what Prime Minister today launched in terms of how we are connecting health with the digital platform. And that probably would bring in complete stoppage on leakages that we have been seeing in the health sector, more accountability, and precise targeting of beneficiaries. And that, I think, also in my own closing, I would very much like to emphasize on dimensions that we discussed in terms of how ease of living, how the common person in all the settings, be that rural or urban or even in the tribal community, they have derived huge strength out of the larger universalization, as Amitabh Kant very rightly said. And we haven't distinguished across any streams. We have targeted them and we have given. तो ये एक जो बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं, वो बड़ा बदलाव मेरे हिसाब से अगर मैं एक सेकंड में कहूँ तो वो ये है कि हमने सभी को समावेशी विकास की तरफ ले जाने का जो प्रयास किया है, उसमें सभी की भागीदारी हुई है, यही हमारी सफलता है। थैंक यू। डॉक्टर सिंह, 1 minute टू यू। पहली बात तो जो हेल्थ पे बात हुई, मैं तो खुद कोविड वार्ड में 23 दिन रहा हूँ सरकारी अस्पताल में। मैं आपको कह सकता हूँ डिजिटल वर्ल्ड ने कैसे सब बदलाव लाए। फ़ोन आ जाते थे, मैं पेशेंट हूँ, आपका ठीक ख्याल रखा जा रहा है, कोई कंप्लेन। तो हेल्थ टेलीमेडिसिन एंड सच कनेक्टिविटीज़ विल इम्प्रूव not only in tribal areas, not only far-flung areas, even in places which are in the NCR region. बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। टेलीमेडिसिन मैंने खुद देखी है जिस तरीके ऑपरेट हो रही है गांवों में, कर्नाटका में, जहाँ पर मैं सर्वे करने जाता था जनधन अकाउंट्स के लिए, तो वहाँ पर भी एक किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। लास्ट कमेंट आई वुड लाइक टू मेक इन जनरल अबाउट ईज ऑफ लिविंग is the private-public partnership that I look at it. The asset monetization program which the government has announced, the assets have already been created and these are brownfield, they have already been created
the private sector can now take the advantage on certain time period and by quoting a certain rate. I think this is the way ahead where employment will be created further, and these are the type of assets which have been sitting idle and quiet, and they are activated through the asset monetization program. One of the things in this ease of living is also recreation facility. Under the asset monetization program, they have also put up stadiums available to the private sector, which during the post-COVID period also takes care of the mental health and engagement of the people while it generates employment. Thank you, Dr. Singh. And last word to you, Dr. Tiwari. This is a very interesting question, I must say, because tribal, like indigenous knowledge and tribal medicines have already pitched into this, which was all losing its ground and all. So ये ट्राइबल मेडिसिन या इंडिजिनस नॉलेज को काफ़ी वापस लाया जा रहा है और इसको प्रमोट किया जा रहा है. जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, माता अमृतामयी या IIMs को जोड़ा जा रहा है या पतंजलि को जोड़ा जा रहा है, जिसमें ये इनको सर्टिफाई भी किया जाता है. जैसे ट्राइबल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स हैं, इसको सर्टिफाई किया जाता है कि हाउ गुड इट इज़ फॉर द हेल्थ. तो दिस इज़ बीइंग प्रिजर्व्ड एंड दिस इज़ बीइंग प्रमोटेड. इनकी पूरी लिस्टिंग है, कौन सी ट्राइबल मेडिसिन है, कौन सी हर्ब्स हैं, कौन सी इंडिजिनस प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रमोट हो रही हैं. इसके अलावा देयर इज़ अ कंप्लीट डेडिकेटेड पोर्टल, जैसे मैंने स्वास्थ्य कहा, जिसमें आपको ट्राइबल हेल्थ, न्यूट्रिशन, हर चीज़ की जानकारी है और इन्हें ट्रैक किया जा रहा है. तो इस तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं और इनकी प्रमोशन काफ़ी हो रही हैं, टेकिंग द इंडिजिनस विद द मॉडर्न फैसिलिटीज़. ओके, सो आपने सुना कि ईज़ ऑफ लिविंग कैसे हम देश में आगे लेते आ रहे हैं. कुछ गवर्नमेंट्स का स्कीम्स हमने सुने हैं, उनका बारे में वो कैसे आगे चल रहे हैं, कैसे उनका हमारे मिशन मोड में काम हो रहा है. देश का विभिन्न भाग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को हम कैसे आगे एक साथ लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं. और उनका बहुत सारे आउटकम्स हमने देखे हैं कुछ सालों में, कुछ महीनों में. इस आगे जाते हुए हम जो उम्मीद करेंगे कि एक आपने सुना PPP मोड में, आपने सुना है कैसे एक ट्रस्ट डेवलप करने का ज़रूरत है. गवर्नमेंट का ऊपर भी एक ट्रस्ट जो है, एक रोल सिटीजन्स का भी है. सो हम सब मिलके, सबको ऊपर एक विश्वास लेके कैसे हम आगे चल सकते हैं कि हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोले कि या ईज़ ऑफ लिविंग जो बोले कि उसको कैसे हम एनहांस कर पाए हैं. आपने देखे हैं सिर्फ अर्बन एरियाज़ में नहीं, शहरों में नहीं, गांव में, ट्राइबल एरियाज़ में आपने एंटरप्राइज का बात सुना है. हमने देख रहे हैं कि सबका कुछ ना कुछ रोल्स है, और वाइल गवर्नमेंट केंद्र में कुछ काम कर सकते हैं, लोकल लेवल में, स्टेट लेवल में, राज्य में भी बहुत काम हमारे करने को है अभी. कि जैसे कि हम ईज़ ऑफ लिविंग में सबसे, और हमारे जो डेवलपमेंट का जो एक उनका जो रिजल्ट्स है, ये कैसे सबको मिले. सो हम धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे एक्सपर्ट पैनल को, हमारे दर्शकों को, कि आज का ये जो चर्चा रहे, इसका हमको बहुत कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले हैं. हमको उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छा लगा. धन्यवाद.